Hello students, I am Ashutosh Anand and I will be giving lectures on class 11th Computer Science for Marwadi College Ranchi. Today we are going to discuss about variables. What are variables? What do you mean by declaration of variable? How do we initialize a variable? What is a constant? What are reference, etc. So अगर हम लोग किसी तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, ठीक है, like C++, if you are writing a programming language C++, we have to keep in mind various fundamental things like data types, variables. What are data types? In the previous video lectures I have discussed about data types. What are the fundamental data types, what are the derived data types, what are user defined data types. ये मैंने previous lectures में discuss किया हुआ है. So today we will discuss about variables. When this name variables come in mind, अच्छा जब variable के बारे में हम लोग सोचते हैं, what are variables? किसी भी चीज में, किसी भी फैक्ट में या फिगर में अगर कोई एक पॉइंट वैरी करता है, वैरी करने का सेंस है कि अगर डिफरेंट होता है ईच टाइम अकॉर्डिंग टू यूजर्स नीड, अगर आपको किसी तरह का डाटा क्रिएट करना है उसमें आप डिफरेंट फंडामेंटल आइडियाज डाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको स्टूडेंट्स के बारे में कुछ डाटा क्रिएट करना है तो आप उसमें डाल सकते हैं वेरियस थिंग्स लाइक नेम, रोल नंबर, मार्क्स, इस तरह से. तो क्या होगा, मार्क्स, रोल नंबर, नेम, ये हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगा, यानी वैरी करेगा. इसी को हम लोग वेरिएबल कह सकते हैं. सी प्लस प्लस के sense में what are variables? Variable is simply name given to memory location which acts as placeholder or container for storing data. It may help to think of variable as container for value. इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल को हम लोग एक मेमोरी लोकेशन की तरह से ट्रीट कर सकते हैं जहां पे आपका जो भी डाटा प्रोसेस होना है, जो भी डाटा को प्रोसेस करना है, वो डाटा वहां पे स्टोर होगा और वो अकॉर्डिंग टू योर यूज, अकॉर्डिंग टू यूजर्स यूज वेरी किया जा सकता है. सो वेरिएबल्स आर नथिंग बट नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन व्हिच एक्ट्स एज प्लेस होल्डर. Now we'll talk about identifiers. Before we go through anything else, we need to understand what are identifiers. Okay, identifiers are nothing but simply the name given to variable, class, union, structure, function. अगर हम लोग किसी तरह का कि डाटा को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसको हम लोग आइडेंटिफायर की तरह से यूज करते हैं. ठीक है, जैसे अगर हमने किसी तरह का इंटीजर यूज करना है, किसी तरह का इंटीजर डाटा यूज करना है, वो इंटीजर्स आर व्हाट, होल नंबर्स. अगर हमें इंटीजर यूज करना है तो int यानी इंटीजर एक आइडेंटिफायर होगा आपके C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. There are some rules for creating valid identifiers. पहला रूल क्या है, an identifier can be any combination of alphabets, digits and underscore. These are the rules. An identifier can be any combination of alphabets, digits and underscore. Second rule is what, neither space nor special symbol other than underscore can be used. यानी space और special symbol किसी भी तरह का asterisk sign, and sign, multiplication sign, ये आप आइडेंटिफायर को डिनोट करने के लिए नहीं यूज कर सकते हैं और स्पेस भी यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अंडरस्कोर साइन ही यूज कर सकते हैं. यानी अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, दीज आर ओनली कैन बी यूज्ड, अदरवाइज नथिंग एल्स कैन बी यूज्ड. एंड लास्ट इज इट वोंट बिगिन विद अ डिजिट. हम लोग किसी तरह के डिजिट के साथ उसको हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, अल्फाबेट के साथ ही स्टार्ट कर सकते हैं आइडेंटिफायर्स को. Here is a table that shows how a valid identifier is written and how is invalid identifier written. See,
over here a is a character and underscore is used. Before it is said we can use alphabets, digits and underscore. So a is an alphabet and underscore is allowed, but 9a is invalid. Why 9 is a is invalid? According to third rule, it won't begin with a digit. यहाँ पे 9 जो है एक डिजिट है, a अल्फाबेट है, बिगिन किया है 9 से, इसलिए ये इनवैलिड है. Underscore a is valid, a underscore b is invalid. A and space b, sorry, this is not underscore a space b is invalid. Why? Because space is used and neither space nor special symbol other than underscore can be used. So this is a table that shows valid kind of identifiers and invalid kind of identifiers. Now when we were talking about variables, how declaration and initialization of variable is done, how to declare a variable, okay? How to declare a variable. अगर हम लोग किसी तरह का variable को declare कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे? So declaration of variable is generally like this type, data type and then name. Okay, data type and then name. Data types are what? Fundamental data types, derived data types and user defined data types are what? They denote what kind of data is going to be processed by your C++ प्रोग्राम. किस तरह का डाटा को हम लोग प्रोसेस करने वाले हैं C++ प्रोग्राम में, वही हमारा डाटा टाइप डिनोट करता है. वो बिल्ट इन रहता है, वो पहले से आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिल्ट इन है, तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं. सिर्फ यूजर डिफाइंड, जो कि यूजर डिफाइंड है, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली. According to this, declaration of variable means specify data types of variable and name assigned, यानी identifier. ठीक है, identifier हम लोग समझ क्या होता है. किसी भी तरह का वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए जो यूज होता है उसको हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं. किसी भी तरह का हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, न्यूमेरिकल्स यानी डिजिट्स हो सकता है और अंडरस्कोर साइन हो सकता है. तो अगर हम लोग इसके केस में ले एक फंडामेंटल डाटा टाइप जो कि इंटीजर है, आई एन टी, और आई एन टी के साथ हम लोग लिखते हैं ए. ओके, ए अंडरस्कोर या आई. ओके, देन व्हाट ए इज, व्हाट ए इज एन अल्फाबेट, अंडरस्कोर इज अलाउड और एज एन आइडेंटिफायर. तो ये एक वैलिड प्रोग्राम हो जाएगा. आई एन टी ए अंडरस्कोर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये वैलिड प्रोग्राम हो जाएगा. A variable declaration provides assurance to compiler that there is one variable existing with the given type, given data type, okay, and name, so that compiler proceeds for further compilation without needing complete detail about the variable. देखिए, वेरिएबल डिक्लेरेशन जब हो जाता है, अगर हम लोग सिर्फ INT लिखते हैं, सिर्फ डाटा टाइप लिखते हैं, तो कंपाइलर को पता नहीं होता है कि किसी तरह का वेरिएबल आने वाला है या नहीं आने वाला है. तो अगर हम लोग किसी तरह का आइडेंटिफायर INT के साथ डिनोट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है, इस तरह का सिंटेक्स क्रिएट होता है आपके C++ प्रोग्राम में. डाटा टाइप एंड वेरिएबल नेम. वेरिएबल नेम इज व्हाट? नथिंग बट योर आइडेंटिफायर. ओके, सो देखिए INT एंड A. ओके, INT क्या है? आपका डाटा टाइप है, इंटीजर डाटा टाइप है जो कि बिल्ड इन फंडामेंटल डाटा टाइप है. और A क्या है? आपका वेरिएबल नेम है. फ्लोट इज अगेन अ वेरी डाटा टाइप, it's a built-in data type, and A is what? Your variable name. So जब इस तरह का हम लोग प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, इस तरह का सिंटेक्स हम लोग जब टाइप कर देते हैं C++ प्रोग्राम में, तो उससे क्या होता है? यहाँ पे होता है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स assurance to the compiler that there is one variable existing with the given data type. ठीक है, यानी एक वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है डाटा टाइप के साथ. ठीक है, तो अगर हम लोग उसको सब कंप्लीटली उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है? कंपाइलर प्रोसीड्स विद फर्दर कंप्लीशन विदाउट नीडिंग कंप्लीट डिटेल अबाउट द वेरिएबल.
उस वेरिएबल के बारे में कंप्लीट डिटेल जानने के बाद नहीं जानने की उसको जरूरत नहीं रहती है कंपाइलर को, और वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है। अब देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कि ये सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, इसका वैल्यू भी होना चाहिए, तो जब इसका हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, इस वेरिएबल नेम का किसी तरह का वैल्यू डाल देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। देखिए, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, इट मींस असाइनिंग द वैल्यूज टू वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए था प्रोग्राम में आपका लिखा हुआ था इंटीजर ए। इंटीजर इज व्हाट? डाटा टाइप। ए इज व्हाट? वेरिएबल। अगर हम लोग ए के साथ किसी तरह का वैल्यू डाल देते हैं यानी 10, तो ये क्या हो जाता है? ये इनिशियलाइज हो जाता है। अब क्या है, कंपाइलर को पहले जब आप हम डाटा टाइप के साथ किसी तरह का वेरिएबल डाले थे, तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था विदाउट द नीड ऑफ एनी फर्दर डिक्लेरेशन कि इस वेरिएबल का क्या वैल्यू है। बट अगर हम लोग उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं, यानी उसको किसी तरह का वैल्यू हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा, हमारा डाटा और अच्छे से एग्जीक्यूट होगा। यानी हमारा अब क्या होगा, इस वैल्यू पे डाटा एग्जीक्यूट होगा। हम लोग इंटीजर ए डाल दिए, यानी ए एक वेरिएबल है और उसका वैल्यू कितना है? 10 है, यानी ये एक इंटीजर है। 10 क्या है? एक होल नंबर है, इंटीजर है। फ्लोट, जब हम फ्लोट बी लिखते हैं, बी हमारा वैल्यूबल है, वेरिएबल है। फ्लोट क्या है? डाटा टाइप है। फ्लोट का काम क्या रहता है कि वो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला यानी फ्रैक्शनल नंबर्स को डिनोट करता है। इंटीजर सिर्फ होल नंबर्स को डिनोट करता है और फ्लोट फ्रैक्शनल नंबर्स को डिनोट करता है। तो बी हमारा वेरिएबल है, और यहाँ पे देखिए एक डेसिमल पॉइंट में नंबर है 30.05। अगर हम 30.05 को यूज करते हैं तो क्या होता है, ये फ्लोट में क्रिएट होता है। फ्लोट b is a variable and the value of b is 30.05. This is how we initialize a variable. This is called initialization of variable. There is another form called dynamic initialization. Okay, when we talk about dynamic initialization is one additional feature of C++. अच्छा, ये एक additional feature है C++ का। इसमें क्या होता है कि एट रन टाइम, ओके, एट रन टाइम ये इनिशियलाइज किया जा सकता है। ड्यूरिंग रन टाइम ये तो आप इस तरह का इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग राइटिंग द प्रोग्राम आप कर सकते हैं, लेकिन डायनेमिक इनिशियलाइजेशन इज वन एडिशनल फीचर ऑफ C++ दैट परमिट्स इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल एट रन टाइम। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। like a variable can be initialized at runtime using expression at the place of declaration। ठीक है, अगर हम लोग किसी तरह का एक्सप्रेशन लिख देते हैं डिक्लेरेशन की जगह पे, तो यानी आइडेंटिफिकेशन की जगह पे, आइडेंटिफायर की जगह पे, तो क्या हो जाता है, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग फ्लोट की जगह, फ्लोट बी की जगह यहाँ पे फ्लोट एवरेज लिख दें, AVG एवरेज, एवरेज क्या हो जाता है, सम बाई काउंट, सम डिवाइडेड बाय काउंट। जो सम होता है सारे नंबर्स का डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं एवरेज। अगर हम लोग यहाँ पे फ्लोट बी की जगह पे फ्लोट एवरेज लिख दें, AVG, तो क्या हो जाएगा, सम बाय काउंट। ठीक है, सम बाय काउंट। तो इस तरह का इनिशियलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। इसके बारे में हम लोग फर्दर जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने लगेंगे, प्रैक्टिकल्स में करने लगेंगे, तो हम लोग इसके बारे में और बेटर जानने की कोशिश करेंगे। Now we'll talk about keywords. What are keywords? Okay, when we are talking about keywords, they are simply the reserved words whose meaning has been explained in library of C language. Now what is a library of C language? देखिए, किसी भी लैंग्वेज में एक फंडामेंटल डाटा रहता है जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता, उसको हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं, जहाँ का डाटा को आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। उन डाटाज में जिस तरह का वर्ड यूज किया गया है उनको हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। ठीक है, 32 कीवर्ड्स है सी लैंग्वेज में, और हम लोग कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर और वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। दिस इज द लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स which are being used in C library, C++ library. They are auto, double, initialization, union, these kind of words. These keywords, ये keywords जो है उनको हम इनिशियलाइजर की तरह से या आइडेंटिफायर की तरह से यूज नहीं कर सकते हैं। इस चीज को माइंड में रखना है। अब देखिए, ये
अगर हम लोग इंटीजर फ्लोट इस तरह से यूज करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक डाटा टाइप है, ये भी एक डाटा टाइप है, और दोनों ही आपके क्या है, कीवर्ड्स हैं। तो इस तरह का अगर कोई सिंटेक्स होता है तो ये एरर बताएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे कांस्टेंट किसको कहते हैं, कमेंट्स किसको कहते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और डबल लाइन कमेंट किसको कहते हैं। थैंक यू।